This is chapter number 2, book of prime entry. We are going to solve question number 1. You want to enter up the sales day book, post the relevant account in the sales ledger, and transfer the sale account in the general ledger. So here are the 3 important tasks to perform. 3 important tasks to perform. Look at the format. This is our sales day book. Another name, sales journal. Sales day book or sales journal. Here is the column of date. Here is the column of customer name. And the last column for amount. Of course, in dollar. After that, you need to open personal account of account receivable, which is to be prepared in sales ledger. Sales ledger is a ledger which is prepared for individual personal accounts of account receivables. Everybody agreed? There are 3 types of ledgers. Sales ledger for receivable account, purchase ledger for supplier account, general ledger for all other accounts. General ledger for all other accounts. So here I made the 3 section. Number 1, you need to make sales day book first. Here is the format. Then you have to open T accounts. Whenever you sold goods, look at the transactions. They all are credit sales. They all are credit sales. And by the way, I hope you remember the double entry of credit sales. Account receivables debit, sales credit, account receivables debit, sales credit, account receivables debit, sales credit. This is a double entry to record credit sales of goods. Everybody agreed? Whenever you sell goods on credit, you have to pass double entry, account receivable debit, sales credit. Here are the accounts of account receivable in the sales ledger. And here you have to open sales account in the general ledger. Every transaction affect twice. Everybody knows a transaction affect twice. One on the debit side, the other one on the credit side. तो यहाँ डेबिट रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर क्रेडिट रिकॉर्ड होगा. Agreed. Everybody must understand, my dear, a transaction affect twice. And whenever you sold goods on credit, the double entry is account receivable debit, sales credit, account receivables debit, sales credit, account receivable debit, sales credit. सर अपने वर्ड्स चेंज नहीं करते, डेवलप करते हैं. रोज हम कुछ नया सीखते हैं मेरे दोस्त, लेकिन पुराने वाले कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते. एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट ट्वाइस. जो भी टी अकाउंट खुलेंगे, अगर ट्रांजैक्शन आएगी तो एक डेबिट पे जा रहा होगा और एक क्रेडिट पे जा रहा होगा. लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन. वे डेवलप हो गया है, चेंज नहीं हुआ, डेवलप हो गया है. आज हम कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे. 2020 मार्च 1 क्रेडिट सेल्स टू बी होप. सब मेरे साथ है. 2020 तो मैं यहां हेडिंग डाल रहा हूं. 2020 मार्च 1 क्रेडिट सेल्स टू बी होप. इस तरह हम डेट लिखेंगे, कस्टमर का नाम लिखेंगे, वैल्यू 310 लिखेंगे. सब मेरे साथ हैं.
For all credit sales, we need to maintain sales day book. Another name, sales journal. Whenever we sold goods on credit, we record it on the sales day book. Simple. क्या क्या लिखना है? डेट लिखनी है March 3rd. कस्टमर का नाम लिखना है डिफाइन. अमाउंट लिखनी है 285. सब ये बात पहले समझ लें. जब आप सेल्स डे बुक मेंटेन कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है? कभी ऐसे सवाल भी आएंगे कि सेल्स भी हो रही होगी, परचेज भी हो रही होगी, लेकिन सेल्स डे बुक में सिर्फ आपको क्या लिखना होता है? सेल्स. कौन सी वाली सेल्स? क्रेडिट सेल्स. कौन सी वाली सेल? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. These transactions are first records in sales day book. कैसे लिखना है? सिंपल. डेट डालो, कस्टमर का नाम लिखो, वैल्यू लिख दो. फॉर एग्जाम्पल मैं 6 लिख रहा हूं. एलमोर 38 लिख लोगे. 10th March. We hope again. Value 74. Everybody can do it. I think you can't do it. मैं शॉर्ट करके सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूं. ठीक है, इस तरह आप इसे कंप्लीट नोट कर लोगे. आखिर में इसका टोटल करोगे. कैलकुलेटर्स प्लीज टोटल कीजिए. 310 plus 285 plus 38 plus 74 plus 534 plus 92 plus 112 1455. Everybody please get the total. 1455. Is that 1455? 1445? Yes, the answer is coming. 1445. Right, class? So this is the first step. You have to record all credit sales transaction in sales day book. After that, post the transaction one by one to the customer's account. अब जितने लोगों के अकाउंट आपको नजर आ रहे हैं उन सब का अलग अलग अकाउंट खुलेगा. मतलब सर, बी होप का अकाउंट अलग खुलेगा, टी फाइन का अकाउंट अलग खुलेगा, एलमोर का अकाउंट अलग खुलेगा, बी होप का अकाउंट दोबारा नहीं बनेगा. ये आपको याद है टी अकाउंट का रूल? एक अकाउंट एक ही दफा बनता है. एक अकाउंट एक ही दफा बनता है, बार बार नहीं बनता. याद है हमने कैश अकाउंट बनाए थे, बैंक अकाउंट बनाए थे, लेकिन एक ही दफा बना था कैश का अकाउंट, दोबारा नहीं बना था. सर वर्ड्स चेंज नहीं करते, डेवलप करते हैं. आगे बढ़ते जाएंगे, पुराने वाले कॉन्सेप्ट वो ही रहेंगे, वो रिवाइज होंगे, वो और स्ट्रॉन्ग होंगे, कभी खराब नहीं होंगे इंशाल्लाह. सब मेरे साथ हैं? आइए सर, फिर हम लिखेंगे यहाँ 2020 डॉलर की हेडिंग. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है सेल करने से या क्रेडिट होता है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बिकॉज ऑफ सेल. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बिकॉज ऑफ सेल्स. डेट डालते रहेंगे. Everybody can do it. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर रहा हूं, सेल्स क्रेडिट नहीं कर रहा, वो बाद में करूंगा. पहले मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर रहा हूं. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बिकॉज ऑफ सेल्स. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बिकॉज ऑफ सेल्स. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट. बी होप आ गया. 3 अकाउंट बनाए थे, बी होप दोबारा आ गया. बी होप डेबिट बिकॉज ऑफ सेल्स.
इसी के बाद जो बाकी अकाउंट होंगे ये भी बनाएंगे आप। टोर का अकाउंट भी बनेगा, यंग का अकाउंट भी बनेगा, आर बेस्ट का अकाउंट भी बनेगा। ये आप कंप्लीट करेंगे। और सेल्स एक साथ क्रेडिट होगा। सेल्स की ये वैल्यू देखो कितनी बन रही है। टोटल वैल्यू क्या थी? 1445। एक एक करके डेबिट हो गया, एक एक करके डेबिट हो गया, एक साथ यहां क्रेडिट हो गया बिकॉज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। मंथ एंड की डेट डाल दें। आई रिपीट, वन बाय वन एक एक करके आपने डेबिट 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 किया, एक साथ क्रेडिट कर दिया। डबल एंट्री कंप्लीट। डबल एंट्री कहती है जिस अमाउंट से डेबिट हो उसी अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए। एक एक करके अलग अलग कस्टमर अकाउंट डेबिट होते रहेंगे, एक साथ सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 1445 ही डेबिट होगा। यहां जब मैं डेबिट करूंगा 1445 ही होगा। एग्रीड? यहां से देख देख के करूंगा, यहां से देख देख के करूंगा, यहां से देख देख के करूंगा, तो टोटल क्या होगा इसका? बोलो 1445 और एक साथ क्रेडिट कर दूंगा। ये है तरीका बुक ऑफ प्राइम एंट्री का। आज मुझे यहीं तक कराना था। आप सब लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। चले शाबाश, जल्दी से कंप्लीट करके दें मुझे ये। जल्दी से शाबाश कंप्लीट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, फिर सर ने ये सॉल्व किया है। सब कंप्लीट करें जल्दी जल्दी। और जल्दी बेटा बेटा फाइनल करें इन चीजों को।